بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پاکستان کے پشاور میں سیاسی جلسے کے دوران خودکش دھماکہ، ANP امیدوار اور 20 دوسرے ہلاک، حلقے کا الیکشن ملتوی۔ ٹرمپ نے جرمنی کو رشیا کا قیدی قرار دیا، دونوں ملکوں کے بیچ تیل اور گیس کی ڈیلنگز پر اعتراض۔ رشیا کی سرحدوں کے قریب فوجیں کیوں جمع کی جا رہی ہیں؟ امریکہ جواب دے، ماسکو نے کیا مطالبہ۔ بروسلز میں نیٹو سمٹ، ایران کے خلاف تائید حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی کوششیں۔ امریکی پابندیوں سے مشکل حالات پیدا ہوں گے، ایران کا اقرار، کہا معاشی جنگ کا مقابلہ کریں گے۔ ٹرمپ جمعرات سے برطانیہ کا دورہ کریں گے، صدر کے خلاف مظاہروں کی تیاریاں، امریکی سفارت خانے نے شہریوں سے کہا ہوشیار رہیں۔ عراق کے بصرہ میں ہزاروں قبائلیوں کا احتجاج، تیل کمپنیوں سے کہا نوکریاں دیں، پولیس فائرنگ سے حالات بگڑے۔ مودی نے کی رام مادھو اور نرمل سنگھ سے ملاقات، کیا بی جے پی PDP باغیوں کی مدد سے کشمیر میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کپواڑہ انکاؤنٹر میں فوجی جوان ہلاک، علیحدگی پسندوں کی اپیل پر وادی بند۔ تاج محل کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے پر سپریم کورٹ حکومت پر برس پڑی، کہا بند کر دیں، گرا دیں یا بحال کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی کو رشیا کا قیدی قرار دے دیا کیونکہ وہ رشیا سے انرجی خرید رہا ہے۔ بروسلز میں نیٹو سمٹ سے پہلے ٹرمپ کی نیٹو چیف کے ساتھ تکرار ہوئی۔ امریکی صدر نے رشیا سے تیل اور گیس امپورٹ کرنے پر جرمنی کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے لیے یہ بہت نامناسب ہے کہ وہ رشیا سے یورپ کی حفاظت کے لیے پیسہ ادا کرے جبکہ جرمنی ماسکو کے ساتھ گیس ڈیلنگز کرے۔ ٹرمپ نے ناشتے پر ملاقات کے دوران نیٹو چیف جینس اسٹولٹنبرگ سے کہا کہ جرمنی رشیا کو $1 بلین دے رہا ہے اور ہم رشیا کے خلاف اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں جرمنی رشیا کا قیدی بن گیا ہے کیونکہ وہ رشیا سے اتنی زیادہ توانائی یا انرجی خرید رہا ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے یہ بات مانی کہ جرمنی اور رشیا کے درمیان قدرتی گیس کی پائپ لائن کے سمجھوتے پر نیٹو اتحادیوں میں اختلافات ہیں۔ امریکہ نے اس سے پہلے وارننگ دی تھی کہ اگر اس پروجیکٹ پر عمل کیا گیا تو وہ پابندیاں لگائے گا۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نیٹو چیف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا نیٹو کا کام نہیں ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ یہ ملک فیصلہ کرے گا، نیٹو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے ساتھ اختلافات کے بارے میں نیٹو چیف نے کہا کہ امریکی صدر نے بہت دو ٹوک زبان استعمال کی ہے لیکن نیٹو اتحاد ذمہ داریوں کو بانٹنے کے بارے میں بنیادی اتفاق رکھتا ہے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے نیٹو اتحاد کے لیے جرمنی کے رول کا بچاؤ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی نیٹو کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ انجیلا مرکل نے اس دعوے کو غلط بتایا کہ جرمنی رشیا کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی آزادی کے ساتھ پالیسیاں بناتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ جرمن چانسلر نے ٹرمپ سے ملاقات بھی کی۔ نیٹو ملکوں کے لیڈرز کی ایک اہم میٹنگ بروسلز میں ہوئی۔ عام طور پر 29 سال پرانے فوجی اتحاد کی میٹنگ صرف نمائش کی حد تک محدود رہتی ہے لیکن اس سال ٹرمپ کی وجہ سے صورتحال بہت الگ ہے۔ ٹرمپ نے کھلے عام کئی بار نیٹو پر تنقید کی اور شکوہ کیا کہ امریکہ نیٹو کے دوسرے ملکوں سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ نیٹو سمٹ سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نیٹو چیف جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ انہیں خرچ اور اتحادیوں کی سنجیدگی کے بارے میں کھلی اور دو ٹوک بات چیت ہونے کی امید ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا اور جرمنی کے درمیان تعلقات کو نامناسب قرار دیا۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ قابل اعتراض ہے جس کی مالیت $11 بلین ہے۔ یہ پائپ لائن رشیا کو جرمنی سے جوڑتی ہے جو بالٹک کے سمندر کے اندر سے بنائی جائے گی۔ اس سے پہلے جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے کئی بار کہا کہ برلن اس پروجیکٹ پر عمل کرے گا۔
डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें एक ऐसे वक्त कही जब कई मामला तो पहले से ही यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका के बीच तनाव पाया जाता है। ट्रंप इस दौरे के दौरान पीर को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से फिनलैंड में मुलाकात करने वाले हैं। खबर है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो नाटो समिट के मौके पर ईरान के खिलाफ ताईद हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पॉम्पियो बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी के ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो ईरान पर दबाव डालने में अमेरिका का साथ दें। हाल ही में यूरोपीय मुल्कों ने यह बात साफ की है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को बरकरार रखना चाहते हैं और ईरान के साथ बिजनेस करते रहना चाहते हैं। अमेरिका ने जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियर समझौते को तोड़ दिया है और धमकी दी है कि जो भी मुल्क 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। माइक पॉम्पियो ने कहा कि वो बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो दूसरी जगहों से तेल हासिल कर सकते हैं। हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया। उन्होंने अबू धाबी में वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान से मुलाकात करते हुए ईरान पर दबाव डालने की स्ट्रैटेजी पर बात की। यूरोपीय मुल्कों के अलावा चाइना और रशिया ने कहा है कि वो न्यूक्लियर डील को बरकरार रखेंगे। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान से तेल की खरीदी में बाज़ सूरतों में कुछ नरमी दी जा सकती है। ईरान के नायब सदर इसाक जहांगीरी ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई पाबंदियों से ईरान के लिए मुश्किल हालात पैदा होंगे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया अमेरिका की इस मौशी जंग का पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। जहांगीरी ने कहा कि दुश्मन की मौशी जंग को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमें यकीन है कि मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरी ताकत से ये जंग लड़नी होगी। जहांगीरी ने कहा कि कई मुल्कों ने कहा है कि वो न्यूक्लियर समझौते के पाबंद हैं, लेकिन उन्हें इस सिलसिले में अमली कदम उठाने होंगे। रशिया ने कहा कि अमेरिका को रशिया की सरहदों के करीब अपनी फौजी मौजूदगी के बारे में सफाई देनी चाहिए। रशिया के वजीर दिफा ने कहा कि अमेरिका रशिया पर जारहियत का इल्जाम लगाता है, लेकिन खुद अमेरिका की फौजें रशियन सरहदों के करीब जमा हुई हैं और उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो रशिया की जमीन के करीब अपने फौजी अड्डों के बारे में सफाई दे। रशिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने इटली के एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया को एक इत्तेहादी की हैसियत से नहीं बल्कि अमेरिकी दबदबे के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। नाटो इत्तेहाद मुसलसल रशिया की सरहदों के करीब और ईस्ट यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पिछले महीने ही नाटो के कोई 19 मुल्कों ने पोलैंड और 3 बाल्टिक मुल्कों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में 18,000 सिपाहियों को तैनात किया। 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया के अलग होने के बाद रशिया और मगरबी मुल्कों के बीच ताल्लुकात में काफी तनाव पैदा हो गया। सर्जी शेगोफ ने कहा कि इस तनाव की वजह यह है कि अमरीकी वाशिंगटन की बरतरी पर यकीन रखते हैं और यही तनाव को हवा देने की वजह है। सर्गी शेगोफ ने सीरिया में ईरान और तुर्की के रोल की तारीफ की। बर्तानिया में अमेरिका के सफारत खाने ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले अमेरिकी शहरियों को वार्निंग दी है कि वो सदर के दौरे के दौरान लो प्रोफाइल रहें। ट्रंप बर्तानिया का 3 दिन का दौरा करने वाले हैं, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरों की तैयारियां की जा रही है। ट्रंप बर्तानिया की वजीर आजम थेरेसा मे और क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात करने वाले हैं। जुमे को लंदन में सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, जहां एक बड़ा गुब्बारा लहराया जाएगा जिस पर ट्रंप का मजाक उड़ाया गया है। अमरीकी सफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर अमरीकी शहरियों को वार्निंग दी कि ट्रंप के दौरे के दौरान वो एहतियात से रहें। अमरीकी सफारत खाने की तरफ से ऐसी वार्निंग एक अनोखी बात है। ट्रंप जुमेरात को बर्तानिया पहुंचेंगे। वो जुमेरात की शाम थेरेसा मे के साथ डिनर करेंगे। जहां जहां वो जाएंगे वहां पर एहतजाज और मुजाहरों की तैयारियां की जा रही हैं। जुमे को थेरेसा मे के मकान के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। सबसे बड़ा मुजाहरा जुमे को होगा, जब हजारों लोग सड़कों पर एक मार्च में हिस्सा लेंगे, जिससे स्टॉप ट्रंप मार्च का नाम दिया गया है। साउथ इराक में हजारों कबायलियों ने एहतजाज करते हुए धमकी दी है कि अगर ऑयल कंपनियां उन्हें नौकरियां नहीं देंगी तो वो तेल की पैदावार ठप कर देंगे। इराक के बसरा में तनाव काफी बढ़ गया है, जहां पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की। इन एहतजाजियों ने एक अहम सड़क को ब्लॉक कर दिया था। फायरिंग में एक एहतजाजी हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। इस दौरान कबायलियों ने मुतालबा किया कि फायरिंग करते हुए एक शख्स को हलाक करने वाले ऑफिसर को हवाले किया जाए उनके, और जिस कमांडर ने फायरिंग का हुक्म दिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन एहतजाजियों की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके बाद कबायली बड़े पैमाने पर मुजाहरों की तैयारियां कर रहे हैं। इराक के करना इलाके में काम करने वाली ऑयल कंपनियां मकामी लोगों को रोजगार नहीं दे रही हैं। कबायली लीडर्स ने ऑयल कंपनियों से कहा कि वो गैर मकामी लोगों की नौकरियां बर्खास्त कर दे, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल है, और उनकी जगह बसरा के नौजवानों को रोजगार दें। बसरा में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं। एहतजाजियों का मुतालबा है कि कम से कम 80% नौकरियां बसरा के लोगों को दी जाएं। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाकिस्तान के पेशावर में सियासी जलसे के दौरान खुदकुश धमाका, एएनपी उम्मीदवार और 20 दूसरे हलाक, हल्के का इलेक्शन मुलतवी। ट्रंप ने जर्मनी को रशिया का कैदी करार दिया, दोनों मुल्कों के बीच तेल और गैस की डीलिंग्स पर एतराज। रशिया की सरहदों के करीब फौजें क्यों जमा की जा रही हैं, अमेरिका जवाब दे, मॉस्को ने किया मुतालबा। ब्रुसेल्स में नाटो समिट, ईरान के खिलाफ ताईद हासिल करने के लिए अमेरिका की कोशिशें। अमेरिकी पाबंदियों से मुश्किल हालात पैदा होंगे, ईरान का इकरार, कहा मौशी जंग का मुकाबला करेंगे। ट्रंप जुमेरात से बरतानिया का दौरा करेंगे, सदर के खिलाफ मुजाहिरों की तैयारियां, अमरीकी सफारत खाने ने शहरियों से कहा होशियार रहें। इराक के बसरा में हजारों कबायलियों का एहतजाज, तेल कंपनियों से कहा नौकरियां दें, पुलिस फायरिंग से हालात बिगड़े। मोदी ने की राम माधव और निर्मल सिंह से मुलाकात, क्या बीजेपी पीडीपी बागियों की मदद से कश्मीर में हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में फौजी जवान हलाक, अलहदगी पसंदों की अपील पर वादी बंद। ताजमहल की मुनासिब देखभाल न करने पर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा बंद कर दें, गिरा दें या बहाल करें। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक सियासी पार्टी के जलसे में खुदकुश धमाका हुआ, जिससे कम से कम 21 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में 25 जुलाई के इलेक्शंस में हिस्सा लेने का ख्वाहिशमंद एक उम्मीदवार हारून बिल्लौर भी शामिल है। अवामी नेशनल पार्टी ने इस वाक़े पर 3 दिन का स्टोक मनाने और सियासी सरगर्मियां रोक देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्टी ने भी पेशावर में होने वाले हमले के बाद अपने प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए। कई जख्मियों का पेशावर के मशहूर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार और दूसरों की नमाज जनाजा और तदफीन की गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। तालिबान ने एक बयान में अवाम से कहा कि वो अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तरों और जलसों से दूर रहें, वरना उन्हें संगीन नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पुलिस ने बताया कि यह धमाका मंगल को रात 11 बजे हुआ, जब एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी। जैसे ही उम्मीदवार हारून बिल्लौर वहां पहुंचे, खुदकुश हमला आवर ने उन्हें निशाना बनाया। खबर मिलते ही अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल पहुंची और एहतजाज शुरू कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने इस धमाके की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। पेशावर में बिल्लौर खानदान को एक अहम सियासी खानदान समझा जाता है। इससे पहले भी इस खानदान को निशाना बनाने की कोशिशें की गई। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पेशावर के उस हल्के का इलेक्शन मुलतवी कर दिया जहां पर धमाका हुआ। जख्मियों की तादाद कम से कम 62 बताई गई। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले यह तशद्दुद का सबसे बड़ा वाकया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला आवर की पहचान अब्दुल करीम की हैसियत से की। तालिबान ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी की साबिका हुकूमत से बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। पाकिस्तान के इलेक्शंस में 849 सीटों के लिए 11,855 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि हाल ही में अदालत के फैसलों की वजह से नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून को फायदा हो सकता है। करप्शन के केस में नवाज शरीफ को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल और दामाद सफदर को भी 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के इलेक्शन से 3 दिन पहले पूरे मुल्क में फौज तैनात की जाएगी, ओहदेदारों ने यह बात बताई।
रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के खतरे के बारे में गौर किया। इन ओहदेदारों की एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई। रशिया के इंटेलिजेंस चीफ सर्जी इवानोव ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में इत्तेफाक पाया गया कि सीरिया और इराक से आईएस मिलिटेंट्स के अफगानिस्तान में पहुंचने को रोका जाए और इसके लिए मिलकर काम किया जाए। हालिया अरसे में आईएसआईएस को इराक और सीरिया में बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तानी सरहद के करीब जलालाबाद शहर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर पर मिलिटेंट्स के हमले में 10 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि चारशंबे की सुबह 2 धमाके हुए जिनमें 10 लोग जख्मी भी हुए। जलालाबाद में 2 हफ्तों में यह तीसरा बड़ा हमला है। सीरिया की फौज ने दरा में फ्रांस में बने जदीद एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स को जब्त किया है। दरा में सीरियन फौज का एक ऑपरेशन जारी है। ये इलाका इसराइल और जॉर्डन के करीब है जिससे काफी तनाव पैदा हो गया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो सीरिया से ईरानियों को बाहर करे। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने पहले ही ऐसा मुतालबा रद्द कर दिया है और इसे गैर हकीकत पसंद करार दिया है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन या अल खलील में एक फ़लस्तीनी स्कूल को गिरा दिया और सामान जब्त कर लिया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इस कार्रवाई की कोई वजह नहीं बताई गई। इसराइल नेवी ने गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर एक समंदरी काफिले पर हमला कर दिया और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने गजा की नाकाबंदी तोड़ने के मकसद से यह सफर शुरू किया था। इसराइल नेवी ने इन कश्तियों को घेरे में ले लिया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वक्फे से ऐसी कोशिशें की जा रही ताकि 12 साल से गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी के मसले को दुनिया के सामने लाया जाए। ऐसी खबर गर्म है कि बीजेपी पीडीपी के बागी अरकान असेंबली की मदद से जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने की कोशिशें कर रही है। दफ्तर वजीर आजम पीएमओ के ओहदेदारों ने दिल्ली में बताया कि जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर रियासत में यह हुकूमत बनाई जा सकती है। वजीर आजम ने इससे पहले दिन में पार्टी के सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज राम माधव से भी मुलाकात की। कयासारायां की जा रही है कि बीजेपी पीडीपी के बागियों के साथ रियासत में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करने की तैयारियां कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मिलिटेंट्स के साथ एक एनकाउंटर में एक सिपाही हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके कांडी में एक ऑपरेशन शुरू किया जब मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने की वजह से एक सिपाही बुरी तरह जख्मी हुआ। इस जवान को आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। आखिरी खबरें मिलने तक ऑपरेशन जारी था। इस दौरान एनकाउंटर में सिविलियंस की हलाकतों के खिलाफ कश्मीर वादी में हड़ताल और बंद से आम जिंदगी ठप रही। अलहदगी पसंदों की कॉल पर यह हड़ताल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की देखभाल के कॉज में नाकामी के लिए हुकूमत पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि वो इस तारीखी इमारत को पोल्यूशन या आलूदगी से बचाने के लिए 31 जुलाई से रोजाना सुनवाई करेगी। अदालत ने तारीखी ताजमहल को बचाने के सवाल पर वजारत माहौलियात और जंगलात के जवाब से मुतमईन ना होते हुए कहा कि आप या तो इसे बंद कर दें या गिरा दें या उसे बहाल करें। अदालत ने एक खुसूसी कमेटी बनाने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आगरा में ताजमहल के आसपास पॉल्यूशन की क्या वजह है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ताजमहल की हिफाजत के बारे में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। आगरा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में वाक़ है। पिछले 30 साल में हवाई आलूदगी में वहां पर काफी इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरी कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर बारिशों से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। कई जगह एनडीआरएफ की टीमें चौकस हैं। मुल्क का तिजारती मरकज मुंबई बारिश से बुरी तरह मुतासिर है। बारिश की वजह से रेल, रोड और एयर ट्रैफिक मुतासिर हुई। इस दौरान उत्तराखंड और मणिपुर में बारिश से जबरदस्त तबाही की खबरें मिल रही हैं। बारिश से मुताल्लिक हादसात में कई लोग हलाक और जख्मी हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सियासी जलसे के दौरान खुदकुश धमाका, एएनपी उम्मीदवार और 20 दूसरे हलाक, हल्के का इलेक्शन मुलतवी। ट्रंप ने जर्मनी को रशिया का कैदी करार दिया। दोनों मुल्कों के बीच तेल और गैस की डीलिंग्स पर एतराज। रशिया की सरहदों के करीब फौजें क्यों जमा की जा रही हैं? अमेरिका जवाब दे, मॉस्को ने किया मुतालबा। ब्रुसेल्स में नाटो समिट, ईरान के खिलाफ ताईद हासिल करने के लिए अमेरिका की कोशिशें।
امریکی پابندیوں سے مشکل حالات پیدا ہوں گے، ایران کا اقرار، کہا معاشی جنگ کا مقابلہ کریں گے۔ ٹرمپ جمعرات سے برطانیہ کا دورہ کریں گے، صدر کے خلاف مظاہروں کی تیاریاں، امریکی سفارت خانے نے شہریوں سے کہا ہوشیار رہیں۔ عراق کے بصرہ میں ہزاروں قبائلیوں کا احتجاج، تیل کمپنیوں سے کہا نوکریاں دیں، پولیس فائرنگ سے حالات بگڑے۔ مودی نے کی رام مادھو اور نرمل سنگھ سے ملاقات، کیا بی جے پی پی ڈی پی باغیوں کی مدد سے کشمیر میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کپواڑہ انکاؤنٹر میں فوجی جوان ہلاک، علیحدگی پسندوں کی اپیل پر وادی بند۔ تاج محل کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے پر سپریم کورٹ حکومت پر برس پڑی، کہا بند کر دیں، گرا دیں یا بحال کریں۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔